Recording in progress. તમે લોકોએ જોયું પેપર? આવડ્યું? હા ના આવડ્યું? અરે સર અડધો કલાક પહેલા પૂરું થઈ ગયું. હા તો બસ, તો પછી એમાં ખુશ શું છે? એટલે આજે ડેન્જિડમ્સની પાર્ટી તમે આની જોડેથી લેજો, એનું અડધો કલાક વહેલો. તો પછી સારી વસ્તુ છે ને. લાસ્ટ ટાઈમ કરતાં તો મેં જોયું હતું લાસ્ટ ટાઈમનું પેપર, તો મને પોતાને આમ એવું થયું કે હવે આ મારે આરામથી બેસીને સોલ્વ કરવું પડશે. આ વખતેનું તો બહુ જ ઇઝી હતું. તો તમે લોકો એમ જ સોલ્વ કર્યું કે આરામથી બેસીને તમારા ટાઈમમાં સોલ્વ કર્યું? તમારે 1 વર્ષ રહીને આપવાની છે ને એક્ઝામ, બરાબર છે? હા તો સારું છે. તમે લોકોએ નથી આપી? અચ્છા, ઠીક છે. તમારી એક્ઝામ ચાલે છે એવું કંઈક છે? 12th છો? 11th? બોર્ડ જ બોર્ડ છે. 12thની એકવાર માર્કશીટ આવશે ને પછી મજા આવશે. યુઝ નહીં થાય એકચ્યુઅલી, બસ કહેવાનો મતલબ એ છે. 10thની બી નથી થતી, 12thની બી નથી થતી. શું ચાલે છે બાકી? વોટ્સઅપ કંઈક કહો યાર. ક્રિએટિવિટી કરો છો કે નહીં? કે બહુ તમે બધા સ્ટુડિયસ છો બધા? યુ એન્ગેજ ઇન એનીથિંગ એલ્સ? કમ ઓન ગાઈઝ યાર. કે તમારે ઇન્ડિયા હારી ત્યારથી તમારો મૂડ ખરાબ છે એવું બધું તો નથી ને? કંઈ હજુ બીટીમાં છો? નોટ? તો ન્યૂઝ તો કંઈક કહો, કે એ બી નથી વાંચતા. એક તો કહો. તું એક કહે, તું એક કહે, તું એક કહે. COP 23માં નરેન્દ્ર મોદી પ્રપોઝ કર્યું કે અમે 2028માં ઇન્ડિયામાં હોસ્ટ કરવાનું ચાલે છે. ઓકે ઓકે, વન મોર પાર્ટી, સો ઇટ્સ ગુડ. ઓકે ગુડ. COP હતી અહીંયા? આજે COPની તું વાત કરે છે, એ કઈ જગ્યાએ હેલ્ડ થઈ હતી? સાઉદી બરાબર છે. કંઈક કે હજુ ને એવું છે કે 1 વર્ષની વાર છે એટલે ધીરે ધીરે? અચ્છા, 12thમાં છે તો દોસ્ત 6 મહિનાની જ વાર છે. कुछ थोड़ा बहुत તું કહી દે ભાઈબંધ માં કે તું હવે સપો કે આપે. હા નહીં? સ્કૂલ જાઓ છો તમે લોકો? પાક્કું? At least she has something, she has the content. 2 ન્યૂઝ આપ્યા, વેરી ગુડ. નામ? અરે એ નહીં. હા એમથી જ નામ છે. યસ હા, એવું કંઈક નામ છે. હા મીચા, એટલે કંઈક વિચિત્ર નામ છે. વેરી ગુડ. ओके गुड. ओके बहुत बड़ी न्यूज़ भी है, लेकिन पुलिस वाले ने एक औरत को गलती से अरे मारा भाई, अरे मारा भाई, we have to read news from the perspective of our examination. This 2 news and this 1 news are relevant for our exam reasons. Okay, last bench. બરાબર છે, ચલો સરસ. થોડું થોડું તો વાંચો યાર. 1.5 કલાક કંઈક મજા આવે અહીંયા આપણે આવું કંઈક ડિસ્કસ કરીએ તો.
કઈ એક્ઝામ માટે પ્રિપેર કરો તમે? ક્લેટ. आईटी में Cat. फ्लैट Cat. બરાબર. चलो देखो, पहले ये महुआ बिन का पढ़ते हैं. महुआ है क्या? What is महुआ? इट्स अ रीजन इन भावनगर का, इट्स वेरी फेमस. ठीक है, महुआ करके एक जगह है अपने भावनगर में. ठीक है, देखो महुआ मित्रा के ऊपर देयर वर सम एलिगेशंस that she took bribe to ask some particular type of questions. Asking question is the job and duty of every MP, but then it needs to be done in an ethical way. ऐसा जनरल पर्सपेक्टिव है और जनरल नॉलेज भी यही कहता है. इफ यू आर डूइंग इट इन अ मोटिवेटेड वे then it becomes a question of integrity. To deal with these things of any moral corrupt practices, there is a committee within Lok Sabha, there is a committee within Rajya Sabha. If the same member is from Rajya Sabha, then Rajya Sabha also has its ethics committee, just like Lok Sabha. So there was a complaint raised by one MP of BJP, Nishkant Dubey, and Om Birla. He raised the complaint, Om Birla, and then this matter was referred to ethics committee. ठीक है, so now we need to understand what is this ethics committee, how many members are there in the ethics committee, who sits in the panel of the ethics committee. ठीक है, is the decision tendered by the committee is bound or not on the speaker of the house. ठीक है, तो देखो और लिखो. देखो पहले तो ये लिखो, कंप्लेन किसने की थी? बीजेपी के जो एमपी है निष्कांत दुबे अगेंस्ट टीएमसी एमपी महुआ मित्रा. वंस द कंप्लेंट इज रेज्ड, देन दिस कंप्लेंट किसकी ड्यूटी होती है? स्पीकर की. स्पीकर रिफर्ड द मैटर टू एथिक्स कमिटी. ठीक है, अभी थोड़ी एथिक्स कमेटी के बारे में इंफॉर्मेशन लिखो. अगर बहुत धीरे बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जितना बोल रहा हूँ उतना ही लिखो. देखो एथिक्स कमेटी क्या है, इसका फॉर्मेशन वॉज डन बाय I.K. गुजराल. ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अगर नहीं पता हो तो आपके लिए आज का नया जीके. ऐसे भी प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम क्या है? इंद्रजीत गुजराल. ठीक है, I.K. गुजराल. ठीक है, उन्होंने 1996 में इन राज्यसभा, इतना ही लिखना है, I.K. गुजराल 1996 राज्यसभा कमिटी बनाई थी फॉर डीलिंग दिस एथिक्स ऑफ एमपीज. ठीक है, I.K. गुजराल राज्यसभा 1996 कमिटी टू डील विद द एथिक्स. हम एथिक्स का ही पढ़ रहे हैं अभी. तो ये मैटर उन्होंने रिफर किया तब एक कमिटी को, जनरल पर्पस कमिटी. जनरल पर्पस कमिटी इन 1997. जनरल पर्पस कमिटी इन 1997. अभी कौन सी कमेटी चल रही है? जनरल पर्पस कमेटी. नाउ दिस कमिटी सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ इंडिविजुअल कमिटी, वन इन लोकसभा एंड वन इन राज्यसभा, टू डील विद द एथिक्स ऑफ रिस्पेक्टिव एमपीज. जो लोकसभा में है कुछ गड़बड़ी तो आप लोकसभा की एथिक्स कमेटी में जाइए, राज्यसभा है तो राज्यसभा में जाइए. लिखो दिस कमिटी रेकमेंडेड. रेकमेंडेड की जगह एरो करके ही लिख देना, 1 फॉर लोकसभा, 1 फॉर आरएस. ठीक है, और तब इन 1997 30 मई
30 मई 1997, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाई? बिकॉज राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? KR नारायण। उन्होंने इस एथिक्स कमेटी का उद्घाटन किया। समझ गए? ये कहां पे बात हुई? राज्यसभा की। लोकसभा की कमेटी तो बाकी है अभी एथिक्स वाली, वो कब बनी? लिखो, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। एक और कमेटी लिखो, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस recommended, COM लिखना और ऊपर T कर देना। कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस recommended ethics committee during the 13th लोक सभा। और उस जमाने के, जैसे हमने प्रेसिडेंट चेयरमैन देखा राज्यसभा के, तो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा? स्पीकर। स्पीकर GMC बाल योगी। ठीक है, योगी नए नहीं है, योगी बहुत पुराने, आते जाते रहते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, लेट स्पीकर GMC बाल योगी। GMC बाल योगी। बाहर योगी। बाल बाल, बाहर नहीं, बाहर अच्छा लगता है, बाल बाल, BAL बाल, ये बाल। He constituted an ad hoc committee. Ad hoc मतलब not permanent. Ad hoc basis means हम बोलते हैं ना यार काम चलाने के लिए ठीक है। Ad hoc committee in 2000 मतलब 2000 के साल में, और वो परमानेंट कब बनी? 2015 में। लोकसभा में 3 चीज याद रखनी है। कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस कब बनाया? जाके आगे उन्होंने बनाया 13th लोकसभा में। स्पीकर कौन थे? बाल योगी साहब। ठीक है, पहले एडॉक बनाया और आगे जाके 2015 में परमानेंट। ये राज्यसभा की कमेटी हो गई, लोकसभा की कमेटी हो गई। ठीक है, कंप्लेन मिलने के बाद स्पीकर ये कमेटी फॉर्म करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रोसीडिंग्स चलती है, बात पूछते हैं, बात करते हैं। ठीक है, द कमिटी, सुनो सिर्फ अभी लिखना, कमिटी मेक रिकमेंडेशन टू लोकसभा। ठीक है, और द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, स्पीकर को, राज्यसभा को। और इस कमिटी के रिपोर्ट के ऊपर दिस टू जेंटलमैन, स्पीकर एंड चेयरमैन, दे टेक द फाइनल डिसीजन। ठीक है, बस इतना तो काफी है। हाँ, और हमेशा याद रखना, अभी हम मैक्सिमम पनिशमेंट देते हैं, जरूरी नहीं था इनको निकालने का। अब इनको 1 महीने के लिए सस्पेंड कर सकते थे, 2 महीने के लिए कर सकते थे, लेकिन अभी क्या है, बोलो बोला ना, सब स्ट्रिक्ट रखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट निकाल दिया। ठीक है, इतना हो गया। अभी और आगे लिखो, महुआ मित्रा इज MP फ्रॉम कृष्णनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ वेस्ट बंगाल। कृष्णानगर। ठीक है, एक सुनना, लिखना नहीं है, जो CEO है हीरानंदानी ग्रुप, हीरानंदानी पता है ना, मुंबई, उनके जो CEO है दर्शन हीरानंदानी। ऐसा है कि उन्होंने ब्राइब किया था ये महुआ बहन को ये सब करने के लिए। ठीक है, महुआ बहन तो निकल दी है, CEO मजे कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? ये सारा का सारा हो गया अबाउट दिस कमिटी। इसके कुछ टेक्निकल डिटेल्स अगर आगे पढ़ने होंगे तब मैं बताऊंगा, वरना कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंपोजिशन लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। पहले लोकसभा लिखो, सिर्फ लोकसभा, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा एथिक्स कमिटी। देखो 15 मेंबर्स होते हैं इसमें,
और ये जो मेंबर है उनका टेन्योर कितने साल का होता है? 1 साल का। ठीक है, चेयरमैन कौन है अभी? विनोद कुमार सोनकर। विनोद कुमार सोनकर इज अ बीजेपी एमपी फ्रॉम कौशंबी। कौशंबी किधर आया? यूपी में आया। ठीक है, बहुत पुरानी जगह है ये सब, अयोध्या के आजू बाजू में ही आया है। ठीक है, राज्यसभा में कितने बैठेंगे कमेटी में? 10 लोग बैठेंगे, अगेन 1 साल के लिए बैठेंगे। राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं तो सिलेक्ट कौन करेगा? चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। लोकसभा के मेंबर्स 1 साल के लिए कौन सिलेक्ट करेगा? स्पीकर। चेयरमैन कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। जावेद अख्तर। अरे जावेद अख्तर नहीं बे, जावड़ेकर, ही इज मराठी। हाँ, अभी देखो, कोड ऑफ कंडक्ट करके एक चीज होता है। मेरा यहाँ पे है, क्या है, मैं घर के कपड़े में नहीं आ सकता, फॉर एन एग्जाम्पल, मजाक समझ रहा हूँ, आप सिर्फ समझो। वैसा सबके लिए होना चाहिए, है कि नहीं? कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा लोकसभा के एमपी के लिए नहीं है, बट राज्यसभा के एमपी के लिए है। सो देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट इन प्लेस। ये कमेटी जब एग्जामिन करेगी भाई इसने कुछ गलत काम किया है, तो कुछ फ्रेमवर्क भी तो होना चाहिए कि क्या गलत किया है, कौन सा कंडक्ट गलत किया है। लोकसभा के लिए कुछ नहीं है, आप मजे करो, ठीक है, लेकिन राज्यसभा के लिए कोड ऑफ कंडक्ट इज फ्रेम, बस। देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर लोकसभा, सॉरी राज्यसभा, एंड नॉट फॉर लोकसभा। समझ गए? सी, वी हैव टॉक दिस थिंग्स बिफोर, आप लोग ही आते हो कंटिन्यूस, आई नो। कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 105। 105 टॉक्स अबाउट द प्रिविलेजेस ऑफ एमपी, कि एक एमपी के पास क्या प्रिविलेजेस है। सो इट इज क्लियरली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव टोटल फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द फ्लोर ऑफ द हाउस। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब ऐसा है दैट इवन कोर्ट कैन नॉट इंक्वायर इन व्हाट यू सेड इन द हाउस ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा। सो आर्टिकल 105 टॉक्स अबाउट द प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी नहीं कर सकते, ठीक है, इसके लिए तो हम कुछ भी बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं ना हमारे एमपी सब अंदर, मस्त बिंदास। और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, ये हमने अभी कोड ऑफ कंडक्ट या मिसकंडक्ट के बारे में एथिक्स कमेटी है, फिर देयर इज़ अ कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस, कि किसी एमपी के जो प्रिविलेजेस है अगर वो वायलेट हो रहे हैं तो उसके लिए भी अलग मैकेनिज्म है, ठीक है। इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने में आई थिंक आगे आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो आगे लिखो। अभी मुझे ये बताओ, रिसेंटली अगर हमने देखा तो गुजरात के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, बताओ कौन सी थी? ऐसा नहीं चलेगा है, कम से कम गुजरात के बारे में तो इतना पता होना चाहिए। सर कोई हिंट्स? આપણે ગુજરાતી છે, એ જ હિંદ છે, અને આપણે લોકો ગજબ લોકા છે। गरबा को कुछ हाँ, वेरी गुड। इंटरनेशनल समथिंग कुछ क्या समथिंग, क्या ऐसा समथिंग थोड़ी होता है। वर्ल्ड कल्चरल डांस Yes. समथिंग कुछ अवार्ड है। I don't know, but you guys are in the class since a long time, I hope. So हमने ऐसा, मैंने आपको दुर्गा पूजा के बारे में भी पढ़ा है, isn't it?
तो वो क्या था, सी दुर्गा पूजा इज अ ट्रेडिशन सिंस लॉन्ग। नाउ दैट इज अ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। दुर्गा पूजा को छू तो नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, isn't it? And it is passed down since a long time. So हम क्या कहते हैं, इंटेंजिबल। देसी बॉयज देखा है, हाँ अक्षय कुमार याद है, टेंजिबल इंटेंजिबल। आप लोग यार पिक्चर नहीं देखते ना इसके लिए, हाँ ठीक है। सो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, व्हाई इंटेंजिबल? फॉर एन एग्जांपल, अगर हम ये ताजमहल को ले लेते हैं, टेंजिबल है कि नहीं? गरबा का क्या है, इंटेंजिबल। दुर्गा पूजा क्या है, इंटेंजिबल। सो दिस टाइप ऑफ हेरिटेज विच इज पास्ड डाउन इन सम ग्रामेटिक वे विच यू कैन हियर, वैदिक मंत्र चैंट्स जो होते हैं ये ऋषिकेश में, ठीक है, ये सारी चीजें, योगा, ये क्या है, सब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो जनरेशन से पास होती है। सो इवन दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो आपको पता होगा, हमने पढ़ा था लास्ट अभी 2-3 महीने पहले, वो अलग लिस्ट है। ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वाला अलग लिस्ट है। उसमें अभी लेटेस्ट एंट्री किसने मारा है, गरबा ने, ठीक है। ये सुन के गुजराती का फ्यूज इतना फ्यूज हो गया, सो ऐसे सर्किट इतना फ्यूज हो गया, इवन वी परफॉर्म्ड अ कल्चरल डांस इन टाइम स्क्वायर, न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। ये पार्टी तो बनती है, ठीक है, गरबा सिलेक्ट हो गया इतना तो। सो वी विल लर्न अबाउट द प्रोविजंस ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, क्योंकि हर एक कन्वेंशन का कुछ डेट होता है, कोई सिटी होता है, कोई कन्वेंशन बेसिस रूल्स होते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ो तो 2 चीज़ें याद रखने की ज़रूरी है, जो बैर मिनिमम होता है, कि कोई भी ऐसा लिस्ट होता है उसमें इंडिया का सबसे पहला एंट्री लेने वाला लिस्ट कौन सा है, कौन से साल में वो हुआ, अभी जो लेटेस्ट वाला हुआ है वो कौन से नंबर में हुआ, कब हुआ। हर एक जगह, सपोज ये गरबा को जब ऐड किया है तो एक जगह पे मीटिंग हुई होती है जहाँ पे ये डिस्कशन के बाद आपको ऐड किया जाता है। वो मीटिंग कहाँ पे हुई थी हमें वो भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है जी। सो यूनेस्को ड्यूरिंग द 18th session, UNESCO during the 18th session of Intergovernmental Committee, in बोस्टवाना। ये बोस्टवाना कहाँ पे आया? हाँ, बॉस्टन, अमेरिका। हाँ हाँ, यूरोप में कहीं एक्सीलेंट, मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाय बोस्टवाना इज अ सदर्न, सॉरी, इफ यू गो टू द नॉर्थ ऑफ अफ्रीका तब जाके बोस्टवाना आएगा, ठीक है, नॉर्थ ऑफ साउथ अफ्रीका, सो ठीक है। सो इट लाइज देयर, बोस्टवाना, ठीक है, वेरी फेमस फॉर एलिफेंट्स एक्चुअली, बोस्टवाना, ठीक है। ऑफिशियली अडॉप्टेड गरबा, गुजराती आइकॉन गरबा डांस, ठीक है, इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। सिर्फ ITCH लिखना, आपको अचानक याद रह जाएगा, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। adopted गरबा इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। આ વખતે તો ભૂકા જ છે, હવે ગરબા કરીએ એટલે બધે આપણે મોદીજીનું પોસ્ટર અને નીચે આપણે બધા ડાન્સ કરીશું, બરાબર છે। This is the 15th edition in the list from India। तो कोलकाता दुर्गा पूजा कौन से नंबर पे होगा? 14th। वेरी गुड। ये गरबा का हिस्ट्री तो नहीं पता होगा, एक्चुअली आई एम जनरली क्रिटिसाइज्ड विद इन माय सोशल ग्रुप एज अ पर्सन हु हैज लेस importance or who would say less about this culture, which is actually opposite true. I know more
लेकिन अपने शो ऑफ ज़्यादा नहीं करते हैं आजकल के बच्चों की तरह। वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड गरबा। गरबा बेसिकली मीन्स गरबी। वो अभी तो हम सब मॉडर्न हो गए, अच्छी बात है, मॉडर्न ही होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, कुछ भी चीज़ें बिगड़ जाती है। इट वॉज ट्रेडिशनली डन इन अ क्लोज पॉट, दिया जला के, विच रिप्रेजेंट्स इन अ वे अ वुम्ब ऑफ गॉडेस। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, गरबी। गरबी से क्या बन गया, गरबा। कब करते हैं, फॉर 9 days ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि। नवरात्रि के फेस्टिवल में जो डांस करते हैं उसे क्या कहते हैं, लिखो। और वूम से पता चल जाना चाहिए दैट इट इज इन अ वे वी आर वर्शिपिंग द फर्टिलिटी, इजंट इट? हर एक चीज हमारे यहाँ पे एक अच्छी है कल्चर में, हर एक चीज को सेलिब्रेट इन अ पॉजिटिव वे में किया जाता है। दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट एज द, लिखो, customarily marks a girl's first menstrual cycle and later her imminent marriage, and it represents goddess Shakti। ठीक है, goddess Shakti। मॉडर्न में हम इसे डांडिया रस भी कहते हैं, घिसो। अभी ये जो हमने ऐड किया, सो देयर इज अ लॉ इन 2003, लिखो, इन 2003 यूनेस्को एडॉप्टेड Convention for the Safeguarding ICH, Intangible Cultural Heritage। क्या सेफगार्ड करना है, ICH। Under this they have two different lists. One is Safeguarding ICH, जिसमें अभी हमारा नाम आया, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट, अभी जो हमने पढ़ा, आया क्या नहीं, रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट। और एक है अर्जेंट सेफगार्डिंग लिस्ट, कि इसको जल्दी बजाना पड़ेगा वरना चला जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझ लो इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है। एनी लैंग्वेज कैन बी अ पार्ट, एनी ओरल ट्रेडिशन कैन बी अ पार्ट, any form of painting, pottery, which is an expression of human emotions or human creativity, all of this can be included in the list। सबसे पहली एंट्री मिली 2008 में, लिखो, ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चांटिंग। ठीक है, और 3 को मिला था एंट्री। दूसरा है रामलीला, ठीक है, पिक्चर नहीं, संजय लीला बंसाली वाला। ठीक है, हाँ, ऐसा मत लिख देना। एंड कुटियट्टम, कुटियट्टम इज अ थिएटर ऑफ, कहां से होगा आपको क्या लगता है, केरला, संस्कृत थिएटर। हाँ, पहली एंट्री वैदिक चांटिंग, दूसरी रामलीला, तीसरी कुटियम। ठीक है, 2021 में दुर्गा पूजा, 2017 में कुंभ मेला, ठीक है, इससे और पुराना पढ़ाओ कि नहीं पढ़ाओ, बस इतना ठीक है। 2017 में कुंभ में, ठीक है। गुजरात में से आई गेस ये पहली एंट्री। सो डांस करना गरबा, ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम जोरदार।
यूनेस्को कुछ भी करता है इंडिया को रिलेटेड वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, अपने आप याद रखना। एनी इंटरनेशनल कन्वेंशन जिसमें इंडियन प्लेसेस, रीजन, ट्रेडिशन, खाने को रिकॉग्निशन मिलता है वो इम्पोर्टेंट होता है। एंड उसे स्टैंड अलोन वे में कभी मत पढ़ना। जैसे कि ऐसा मत करना कि हाँ गरबा अभी ऐड हुआ है, ये पीछे का हिस्ट्री पता होना चाहिए। 2003 में कन्वेंशन आया, बोस्टवाना में हुआ, ठीक है। आपके लिए होमवर्क लिखो, ये कलकत्ता वाला जो है दुर्गा पूजा, वो कौन सी मीटिंग में एक्सेप्ट हुआ था? जैसे ये वाली कौन सी थी, 18th इन बोस्टवाना, तो ये जो कलकत्ता वाला है दुर्गा पूजा, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज तो पता है सबको, पता है कि नहीं पता? कौन देता है? इन अ वे यू आर क्लोज, रॉयल स्वीडिश साइंस एकेडमी, ठीक है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि दे गिव 3 नोबेल प्राइजेस, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब मेडिसिन, ठीक है। बट तो पीस प्राइज कौन देता है तो वही नोबेल पीस प्राइज। गिसो, नॉर्वेजियन पीस कमिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्वे में मिलता है पीस प्राइज, है तो नोबेल ही, लेकिन जिसमें रॉयल साइंस एकेडमी का पार्ट नहीं है, ठीक है। नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी has decided to award 2023 Nobel Peace Prize to, किसको मिला था पढ़ा चुका हूं, ये तो आज सिर्फ याद करवा रहा हूं। मतलब इतना लंबा मैं पढ़ाऊं ना आपको कि कुछ परमिएट हो जाए आपके ब्रेन में, वो भी नहीं होता, ठीक है। नरगिस मोहम्मदी, कितना पढ़ाया था, माशा अमीमी पढ़ाया था ताकि आपको सब याद रहे, ठीक है। फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमन इन ईरान, ठीक है। तो बहुत प्यारे लोग हैं, मेरे को ये बेस्ट बहुत पसंद है एक्चुअली। गाजा में जो भी हो वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो वुमन के राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है, उधर इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सही है उनका, मतलब। और ऐसे अवार्ड वेवार्ड देके अपने को अच्छा भी लगता है कि बोलो अपने को नोबेल पीस प्राइज मिला, ये मिला, फलाना मिला, ठीक है। पैसा मिलता है वो काम का है, बाकी ये सब मेडल वेडल तो ठीक है। बट इजंट इट लॉजिकल, डू आई मेक सेंस? अगर आपको ये इतना राइट्स यहाँ पे पसंद है तो हर जगह पे पसंद होना चाहिए ना। अगर सिलेक्टिव राइट्स क्यों रखते हो आप, ठीक है। कोई बात नहीं, चलता है, जिसका डंडा बड़ा उसकी दादागिरी बढ़ी, ठीक है, ऐसा है। टू प्रमोट ह्यूमैनिटेरियन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल, ठीक है, ऐसा कमेटी ने बोला है। फॉर हर फाइट इन ईरान, ठीक है। एक सिंपल सवाल पूछता हूँ जिसके ऊपर मैंने आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाया था लास्ट में। अभी हमने गगनयान को रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन किया था, उस मिशन का नाम क्या था? ये 1 साल कहाँ निकल जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। पढ़ लिया करो, सच कह रहा हूँ मैं आपको। नोबेल प्राइज से लिखो एक, आज 10 दिसंबर है ना, हाँ, 10 दिसंबर 1930। In 1903 on this day, 1930. 1930, C.V. Raman was presented with the Nobel Prize for Physics. ये जो बोस्टवाना है ना, उसमें एक पार्ट लिखो। बोस्टवाना इज अ कंट्री, द सिटी नेम वॉज कसाने, KASANE, और जो कमिटी है उनका मीटिंग इज वॉज फ्रॉम 5th to 9th दिसंबर।
5th to 9th December, Kasane, Botswana. Squadron leader. Next news. Squadron leader, लिखो भाई. Squadron leader Manisha Padhi, Manishapadhi, is India's first woman becoming the first female officer, woman officer, female officer in the Indian Armed Forces. To be appointed as ADC. ADC का फुल फॉर्म क्या है? एड द कैंप. फ्रेंच है ये बड़े. दैट मीन्स अ पर्सन हु हेल्प्स यू टू डिस्चार्ज योर ड्यूटी. उसे क्या कहता है? एडीसी. एड द कैंप टू द गवर्नर ऑफ मिजोरम. टू द गवर्नर ऑफ मिजोरम हरि बाबू खंबापति. ठीक है. हेरा फेरी देखा है? कुछ याद आया उससे? कनेक्शन बैठता है कि नहीं बैठता? घर पे जाके देख लेना. ठीक है. मिजोरम का कैपिटल क्या है? वेरी गुड. लिखो. लिखो, नीचे लिखो. एट द कैंप टाइटल एडीसी, सिर्फ एडीसी is a title given to an officer in armed forces who assists a high ranking officer. Who assists a high ranking officer. ये बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑनर माना जाता है. ठीक है. इंडिया में जो हमारी आर्म फोर्सेस है, नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, वो प्रेसिडेंट्स हैं, गवर्नर्स हैं. दे हैव एडीसीज विच हेल्प देम टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज. प्रेसिडेंट को कभी देखा होगा तो उनके पीछे यूनिफॉर्म वाले ऑफिसर्स होते हैं. देखा है कभी आते जाते हुए उनको? वो क्या है? उनके एडीसी है. ठीक है. स्टेट गवर्नर्स इन इंडिया हैव यूजुअली 2 एडीसीज. कितने होते हैं गवर्नर्स के पास? जनरली 2. One is from Indian Armed Forces and one is from Indian Police Service, IPS. ठीक है. एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे दोनों एडीसी आर्मी से होते हैं. यस सर. जिनको वो 2 नोबेल प्राइज मिले थे और उनके हस्बैंड को भी मिला था. एक नाम भूल गया. पूरी स्टोरी पढ़ी थी, नाम भूल गया. मैरी क्यूरी. ठीक है. हस्बैंड का नाम पियर क्यूरी. ठीक है. कोलकाता डिक्लेयर्ड एज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर 3rd consecutive year.
ये रिपोर्ट मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा एनसीआरबी, क्योंकि बहुत सारे फाइंडिंग्स होते हैं, वो देखना पड़ेगा क्या पढ़ाने लायक है क्या पढ़ाने नहीं लायक है, ठीक है। सर गुजरात का हाईएस्ट रैंक का फीडबैक कुछ नहीं बोलेगा इंडिया गुजरात इज बेस्ट, सर सबसे डेंजरस दिल्ली होगा ना। मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन गुजरात इज बेस्ट, ठीक है। पता चला मेरे घर पे रेड पड़ गई किसी की, पापा टेंशन में, गुजरात इज बेस्ट, ठीक है। हाँ कुछ बोलने का नहीं। हाँ थोड़े कस्टोडियल दैट्स में हम फर्स्ट नंबर है, थोड़ा कस्टडी में थोड़ी मस्ती हो जाती होगी ज़्यादा, चलता है, लेकिन विकास होता है ना, भले ना कोई मर जाए चलता है, ठीक है। कोलकाता emerged as the safest city in India for third consecutive years. Report released by NCRB, National Crime Records Bureau. देखो बहुत अच्छी बात है। तो हमारी सरकार ने क्या बोला है, कलकत्ता है एक, तो देखो कहाँ पे आया, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तो पता ही है कितना फेवरेट स्टेट है अभी करंट गवर्नमेंट का। तो वो लोगों ने रिफ्यूट किया द गवर्नमेंट ऑफ द डे that this report are false, and I was thinking अंकल आपने ही रिलीज किया है, मतलब यू नो एनसीआरबी वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, बेसिकली अंडर अमित शाह, उन्होंने ही रिपोर्ट निकाला है, एंड दे आर लाइक नो नो दिस इज ऑल फॉल्स, ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स कलकत्ता। अगर अहमदाबाद आता तो मतलब सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अहमदाबाद इज बेस्ट, लेकिन कलकत्ता है तो फिर थोड़ा इश्यू रहता है, ठीक है। अभी दीदी इतने जोरदार है ना वहाँ पे कि क्या करें, ठीक है। हाँ दीदी इज दीदी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट लिखो। अभी एक दिन गया 26 नवंबर को क्या होता है भाई? 26/11 वेरी गुड, फैबुलस, एक्सीलेंट। हाँ वो है, गलत कहाँ है? हाँ शी इज राइट। दूसरा कुछ सोचो। सर हाँ देखो आप है ना सब लॉयर बनना चाहते हो, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन ये कुछ चीजें तो आनी चाहिए ना, बेसिक है ना। 26 नवंबर को क्या हुआ था? 1949 में द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड। क्या वर्ड यूज किया? एडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एनेक्टेड बोलूं तो रिपब्लिक डे, ठीक है। अडॉप्टेड है तो क्या आएगा? 26 नवंबर। घिसो ये। सर ये क्या 1949। ठीक है। तो वो जो उस जमाने के बेवकूफ लोग थे उनको कह सकता हूँ बेवकूफ, क्योंकि वो सब मर गए हैं, सो आई डोंट केयर, ठीक है। आज सब बहुत अच्छे लोग हैं, आज ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो जिंदा है, सो आई हैव टू बी अलाइव आल्सो, ठीक है। उनको मैं गाली दे सकता हूँ। और वो लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग थे, वो कुछ ऐसा पुलिस नहीं भिजवाते थे, ठीक है। वो अपने काम से काम रखते थे। अभी थोड़ा डेमोक्रेसी हम बहुत मैच्योर हो गई है हमारी यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कह सकते। तो वो लोग जितने भी लोग थे उन्होंने, अगर कॉन्स्टिट्यूशन साइन आपने देखा हो अडॉप्टेड, तो उसमें लिखा है नीचे ऑन दिस डे वी अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर हमने क्या कर दिया, ये 26 नवंबर है उसको क्या डिक्लेयर कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। तो उसके कुछ फैक्ट्स लिख लो आप आराम से, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल लॉ डे। समझ रहे हो आपके लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट है? नेशनल लॉ डे। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। भाई बहुत ठंडी लागे છે, તમને ગરમી લાગશે ને, ચાંદ વાંધો નહીં ને। They मिनिस्ट्री ऑफ social justice and empowerment on 19th November 2015 notified the decision of Government of India GOI
to celebrate 26 November as Constitution Day. ठीक है? They notified that this will be from now onwards Constitution Day. We share all of this, share this perception that we know only few people from our freedom struggle. That is because we don't study and we don't need to study about past. My personal opinion. Why? It is not helpful. Generally, within my social circles, I see this, क्योंकि ये narrative नया आया है कि हम इनको ही जानते उनको नहीं जानते. So I studied in USA for 4 years. So even there, everybody know Washington, isn't it? हाँ के ना? Everybody know Andrew Jackson. हाँ के ना? Do you know who was Ulysses Grant? हाँ, नहीं पता. Very important person. He was the commander of the Union forces जब अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था. The reason what I am trying to say is that we know only few people, not because कि हम वही पढ़ते हैं, because they are very very important people. You can't neglect them. अगर आप कोई हिस्ट्री के बच्चे को पूछोगे कि भाई एमएन रॉय कौन है, तो he will say that oh, एमएन रॉय, he was the first to propose the Constituent Assembly. ये जो Constituent Assembly बनी वो 1934 में, the first person to say that we want a Constituent Assembly to frame our own constitution was एमएन रॉय. लिखो. ये है ना कि हम सिर्फ नेहरू को जानते हैं, इनको नहीं जानते, वो बेवकूफ लोग हैं, उनको ये पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आता. लेकिन वो तो बुक्स का होता है ना, जो बुक्स लिखता है वो एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता है. That is true, but what I'm here to make point that you कुछ भी बुक लिखो about Indian freedom struggle, you have to write about Nehru. आप बलवंत राय मेहता को नहीं लिखोगे चलेगा. Who is बलवंत राय मेहता? He was the chief minister of Gujarat, participated in the freedom struggle. My point here, you can't say कि इनको इग्नोर करके इनको लिखा है. नहीं, ये ऐसे लोग हैं जो गिने चुने लोग होते हैं जिनके बारे में आप कुछ भी लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो उनको आपको लिखना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि फिर ये बलवंत राय मेहता ने, कि जीवराज मेहता ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं कह रहे हम लोग. बट दे आर वेरी रीजनल. यू वुड नॉट नो बीजू पटनायक फादर, ये नवीन पटनायक का पप्पा, very important person. Why? But if you are from Odisha, you might know his contribution. But Mahatma Gandhi is famous from Gujarat to Odisha. That's the point. लेकिन आपको ऐसा पता है कि हमसे आपको सिर्फ इसके बारे में पढ़ाया गया, नहीं, ऐसा नहीं होता. उनके बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा है. लेकिन ये सब इतना हो रहा है. मैं थोड़ा कॉमनली सोचता हूँ यार कि यार कहाँ से पढ़ेंगे हम इतने सारे लोगों के बारे में, कहाँ से? I told one of my friend that I think that in India's freedom struggle tribals have more fought rather than any of the party or any of the people. तो भाई क्या बात कर रहे हैं? तो मैंने बोला तुझे कुछ किताबें देता हूँ, पढ़ो, देखो, फिर सोचो. लेकिन ये तो बात है. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी ये है कि जो बनी तो उससे जो काम हुआ, इसलिए यू आर मोर नोन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी. लेकिन ये आइडिया है वो बहुत पुराने होते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर एमएन रॉय को हम भूल गए. अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपको डेफिनेटली उनके बारे में पता होगा. वो किसी ने जानबूझ के नहीं किया है ये सारी चीजें. ऐसा एमएन रॉय 1934, ठीक है सर. लेकिन ये सबको पढ़ने में इतना टाइम वेस्ट हुआ क्योंकि आधे से ज्यादा इंटरनेट भी वेबसाइट्स फंडेड होते हैं बाय गवर्नमेंट, एक बायस्ड होते हैं वो भी, और बुक भी. आई एम द ओनली पर्सन हु इज ऑफ द ओपिनियन कि भाई हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. मेरा तो ऐसा ही मानना. क्या करना है, क्या करना क्या है, ये AI पढ़ो, सैम एल्टमैन बनो, ठीक है. दैट्स द फ्यूचर, इजंट इट? कि हिस्ट्री में किसने क्या किया वही देखना है. क्योंकि सर एक बुक में लिखा था भगत सिंह टेररिस्ट है. सी गला भी नहीं कर रहा मैं. दैट इज ट्रू. यू अरे सुनो अंडरस्टैंड माई पर्सपेक्टिव हियर. अभी आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से देखोगे
a Britisher writing about Bhagat Singh X. There are two newspapers. What will he say? But for us, for me, he is definitely a freedom fighter. ये वाली बात है, इसमें इसको स्कैंडलाइज करने की क्या जरूरत है? इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, नहीं। ये एक सेइंग है, one person's terrorist is other person's freedom fighter. ये क्या नहीं पता हमको? इसमें इतना इश्यू बनाने की क्या जरूरत है इस बात? ब्रिटिशर ऐसा ही लिखेंगे, हम नहीं मानते, ठीक है? ऐसी वाली बात है। सिर्फ ब्रिटिशर को लिखा है और इंडियंस को भी पढ़ा है, क्योंकि एक बहुत रिनाउंड बुक है। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज कहते हैं मुझसे, विच इंक्लूड्स एक्ट ऑफ टेरर। अगर आप इसे पचा सकते हो पचा लो। एक्टिविटीज देखोगे तो कैसी है? गांधी की एक्टिविटीज देखोगे तो कैसी है? यू टेल मी, दैट इज द डिफरेंस। लेकिन दोनों सही है, बट मीन्स आर डिफरेंट। सो ये मैंने आपको आपके बात का जस्टिफिकेशन दिया, that if you analyze the activities of one person and the other person, you take the call, but both are freedom fighters. Both are freedom fighters. यही बात है। एक डांडी लेके चलता है, दूसरा बंदूक लेके चलता है, गलत कुछ नहीं है, दोनों सही है, ठीक है? ये वाली बात है। एक्टिविटीज देखोगे आप तो आप खुद बोलोगे कि हाँ, दिस कैन बी क्लासिफाइड एज दिस। ओके, कंटिन्यू। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बनी, that was formed on the recommendation of cabinet mission. कैबिनेट मिशन ऑफ 1946, ठीक है? There were different committees that were formed within the Constituent Assembly to deal with different important tasks, ठीक है? उसमें से there were total 8 major committees. कितनी major committees थी? 8. पहली मेजर कमिटी ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। नाउ वन मोर पॉइंट, चलो ये समझने की बात है, मैं आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ बेटर पर्सपेक्टिव। ड्राफ्टिंग कमिटी बेसिकली एनालाइज द वेरियस recommendations that were made by B.N. Rao. B.N. Rao was the constitutional advisor. ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का Who was the constitutional advisor, जिसने एक ड्राफ्ट तैयार किया बहुत बड़ा, वो कौन है? B.N. Rao. Now it was the job of this drafting committee along with the constituent assembly to give the final constitution, ठीक है? ड्राफ्टिंग कमिटी का काम क्या है? फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना। हर एक चीज के ऊपर वोटिंग होती थी, आपको शायद पता होगा। तो हर एक प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो डिबेट होते थे एंड बाद में जाके वोटिंग होते थे। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? B.R. अंबेडकर। आगे दो कमेटी लिखो, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ये इतना जोरदार आवाज किधर से? अच्छा कोई बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट्स कमेटी। मैं कुछ लोगों को कुछ बोलता हूँ तो बहुत स्कैंडलस लगता है, लेकिन फिर मैं क्या करूँ, मैं पढ़ के आता हूँ, मतलब मेरा रीडिंग अलग होता है। ये स्टेट्स कमेटी का काम क्या था पता है? टू नेगोशिएट विद द स्टेट्स फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ विद इन द इंडिया। इसका चेयरमैन बोलो कौन होगा? लिखो इन तीन कमेटी का, जवाहरलाल नेहरू। पढ़ना पड़ेगा भाई, वही तो कहता हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और these are facts, these are not hypothetical questions, ठीक है? कंफ्यूजन होता है, मैं जानता हूँ, इसमें मैं तो कहता हूँ ना। पर थे, उन्होंने ही सब कुछ किया है। मैं कहता हूँ ना, देयर आर थिंग्स विच आर, लेकिन नैरेटिव्स इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? नैरेटिव्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि हम कुछ नहीं कर सकते अभी इसका। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, वल्लभ भाई पटेल।
एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, जो हमारे ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरियाज ये जो है, उसका बॉस कौन था? वल्लभ भाई पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी, कमिटी मत देखना, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड स्टीयरिंग कमिटी, उसका बॉस कौन था? राजेंद्र प्रसाद। सर आपको पता है जवाहरलाल नेहरू वो रोज क्यों बैठते थे? जो था, मेरे को नहीं पता भाई, ठीक है, गैस कर सकते हो? हाँ एक मिनट। स्टीयरिंग कमिटी एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी, रूल्स ऑफ उनका राजेंद्र प्रसाद। हाँ भाई बोल दे। गैस कर सकते हो बैठते थे ऐसा? कभी किसी ने बोला तो होगा ना क्यों? मैं तो इसके लिए पहनूं ताकि किसी को दे सकूं। आई डोंट नो अबाउट हिम, ठीक है। हमको ऐसे, मेरे को तो पता नहीं आप सबका, लेकिन हमको बचपन में चिल्ड्रन के होता था तो बोलते थे वो इसलिए पहनते थे कि चिल्ड्रंस के लिए। लेकिन मैंने पढ़ा था तो वो अपने एक लवर के लिए पहनते थे जिन लाइक उन्होंने चीट किया था। वेरी गुड। तो उनके लिए वो पहनते थे। that's like the Gen Z story. I like. I don't know. ठीक है, कहाँ गलत है? ठीक है। I have no business in anybody's personal life. बट बैक में यही पूछेंगे ना कि जवाहरलाल नेहरू रोज क्यों बैठते नहीं। थे? I actually I'm teaching since last 3 years this course. I like it, but I told my mother for a few months ago that now I think that it's so hard to teach some topics to students because it's very challenging in today's environment. So this is the case. ये वाला नहीं, overall, कि if you say anything, it can be scandalous, controversial. क्या बोले समझना नहीं है, ये पूरा ब्लैक और ये पूरा वाइट बस। लेकिन अभी क्या करें, जितना कोशिश है उतना कर सकते हैं, ठीक है। फिर लिखो वर्ल्ड लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन, लैंग्वेज। We have a parliamentary form of government which works like a presidential form of government. ठीक है, जोरदार से आप लोग पढ़ोगे आगे जाके, आप मुझे याद करना था कि हाँ सर ऐसा बोला था सर ने, ठीक है। It took 2 years, 11 months and 18 days. 2 years, 11 महीने 18 दिन। ये टाइप डॉक्यूमेंट नहीं है, इट इज अ टोटली हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। राइटर कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। रायजादा इज गुजराती सरनेम यार, कम ऑन। अगर किसी के राजपूत दोस्त होंगे तो नाम में बिहारी भी तो है सर। हाँ, अरे। The Constitution of India was originally written in 2 languages, Hindi and English. The basic structure is heavily borrowed from Government of India 1935. ठीक है, इसमें भी मैंने बहुत अच्छी चीज देखी है, फिर कभी बताऊंगा ये फीचर को लेकर। So the people who want to criticize the constitution, or basically in a way want to criticize B.R. Ambedkar, then they say that he has just borrowed everything, isn't it? But then some people are like, no, this document is written by B.N. Rao, so it's a very good document. ये वाली चीज भी है, याद रखना। We only have single citizenship concept in India, no dual citizenship. We have a federal system but with a very strong center. पता है कि नहीं पता है? कभी भी आर्टिकल 356 लग सकता है, कभी भी स्टेट में से यूनियन टेरिटरी बन सकता है। वो क्यों है? बिकॉज वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है।
फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरो किए, कहाँ से किए होंगे, क्या लगता है? बिल ऑफ राइट्स फ्रॉम यूएसए, ठीक है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, इट इज अ सोशलिस्ट फीचर। आयरलैंड, नहीं सॉरी, वो नहीं, फंडामेंटल राइट्स, माय बैड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल वी हैव बोरोड फ्रॉम आयरलैंड। और जो हमारा सोशलिस्ट फीचर्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, वो कहाँ से लिया हमने? रशियन इंस्पायर्ड, ठीक है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, फ्रांस, लिखा है ना प्रीएम्बल में, ठीक है। ये बेसिक फीचर्स है जो हमने हर जगह से, हमें जो बेहतर लगा। B.N. Rao traveled all around the world. Ivar Ambedkar studied so many constitution to give this final thing, ठीक है, कि ये अच्छा है तो इसको रखो, बाकी सब डिस्कार्ड कर दो। होमवर्क लिख लो आप, 25 नवंबर को क्या होता है, ठीक है। बाकी इस टॉपिक के रिगार्डिंग अभी आपको हर एक क्वेश्चंस आएंगे, और ऑलरेडी 25 नवंबर के ऊपर क्लैट में क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो अभी आपको आई गेस आना चाहिए। भाई डीप फेक क्या है, सिर्फ बेसिक जानना है मुझे, आपको नॉलेज देखना है आपका, क्या है डीप फेक? वो एआई के थ्रू आप किसी आप किसी पर्सन के ऊपर किसी और का चेहरा लगा सकते हो या खुद Yes. कर सकते हो किसी और। Yes, it's a AI technology which is used basically for impersonification, ठीक है। क्योंकि अभी आड़े दिन किसी का भी हाँ बन रहा है, ठीक है, दबा दब, तो हमें इसके बारे में थोड़ा नॉलेज पता होना चाहिए। इसमें कुछ टेक्निकलिटीज पता नहीं चल रही अभी कि क्या पढ़ाऊँ आपको। जिस दिन वो आइडिया क्लियर हो जाएगा हम इसको पढ़ लेंगे। इसके बारे में कुछ गवर्नमेंट ने रेज भी हुआ था ना इसके बारे में बहुत, हाँ। लेकिन वो क्या है, सब ज़्यादा बातें हैं, मतलब कुछ कॉन्क्रीट नहीं है। इसके लिए फिर मैं अभी थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। कुछ एकदम मज़ेदार बीच में आए तो कुछ पढ़ने लायक हमारे, ठीक है। और कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है? एलिफेंट कॉरिडोर पढ़ा हमने कि राइनो पढ़ा था? સર એક અભી કોઈ રાજપૂત લીડર की भी डेथ हुई ना महाराष्ट्र अरे पण ये अपने क्वेश्चन में ना आवे ना दोस्त। वी हैव टू रीड एनी टॉपिक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अवर एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो इंडिया भूटान रिलेशनशिप के बारे में लिखो। Why King of Bhutan recently visited India? So because of this we are going to study about India Bhutan, ठीक है। We shared a land border with Bhutan. Homework लिखो, what is the length of this border? जो इंडिया भूटान के बीच में जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री जो बॉर्डर है वो कितनी लंबी है? फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट्स बॉर्डर भूटान? Bhutan is right now a least developed country, but it will become a high income economy by 2034. भूटान का कैपिटल थिम्पू, THIMPU।
diplomatic relation in 1968, ठीक है, formal diplomatic relation in 1968. We already had a treaty of friendship and cooperation in 1949, which was renewed in 2007. हाँ, अभी इसका जोरदार सीन है। ये क्या है, 1949 में जब ट्रीटी साइन हुआ ना, सो इन अ वे दो चीज़ें काफ़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट थी। दैट भूटान विल इन अ वे सीक सम गाइडेंस फ्रॉम इंडिया इन इट्स फॉरेन पॉलिसी मैटर। तुम रिश्ता कहाँ रखते हो, किसके साथ रखते हो, वो थोड़ा हमको बता के, हमसे थोड़ा सलाह मशवरा करके करना। द अदर इम्पोर्टेंट थिंग वॉज दैट आर्म्स इम्पोर्ट करने हैं, तो वो इंडिया से बात करके परमिशन लेके इंडियन बॉर्डर से होने चाहिए। बट देन एक बात याद रखना, अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े भाई बनोगे तो आजू बाजू वाली कंट्रीज विल ऑलवेज फील अनकंफर्टेबल। इन इंटरनेशनल लैंग्वेज वी कॉल इट बिग ब्रदर एटीट्यूड। श्रीलंका को भी क्या लगता है दैट इंडिया ट्राइज टू डोमिनेट अस, सो डज मालदीव्स, सो डज बांग्लादेश, सो डज नेपाल एंड भूटान, ठीक है। सो व्हेन वी रीनेगोशिएटेड अवर फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी इन 2007, in that we decided that you have to do foreign policy with India's guidance, but this condition of arms control was waived. Bhutan from 2007 can get arms without India's permission. इतना लिख लो। Since 2007, Bhutan does not require India's permission over arms import. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसा कैसा लगेगा भूटान को कि इंडिया को पूछ के करना पड़ेगा सब काम काज, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं है, वी हेल्प इंडिया, एवरी कंट्री, अवर नेबर्स अ लॉट, ठीक है। भूटान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? इंडिया। India is the principal development partner of Bhutan. हम भूटान में क्या करते हैं बेसिकली? सी, भूटान इज अ माउंटेनियस कंट्री and it has a large potential for hydroelectric power. So what we do, we help them to develop this hydroelectric power with established purchase agreements. Like भाई तू बना, तेरा 50% इलेक्ट्रिसिटी तो कौन ले लेगा? हम लोग ले लेंगे, ठीक है। इसके बारे में आगे लिखो। In 2006, a bilateral agreement for cooperation was signed and its protocol was signed in 2009. 2006 में क्या किया? Bilateral agreement for cooperation, एंड प्रोटोकॉल कब साइन किया? 2009 में। फोर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट HEP which totals to which totals to 2136 megawatt are already operational and हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। फिर 720 मेगावाट मांग डेचू, मांग MANG, डेचू DECHU, ठीक है।
Puntasachu, Puntasachu 1 and Puntasacha 2. They are right now in development mode. और एक हमने कंसेशन अग्रीमेंट भी साइन किया है फॉर 600 मेगावाट खोलोंगचू इन 2020. ठीक है, देखो और एक याद बात रखना, आज कह रहा हूं 1 साल तक याद रखना, इंडिया हर एक कंट्री को हेल्प करने के लिए एक बहुत ही अम्ब्रेला प्रोजेक्ट रखती है जिसे हम कहते हैं आईटेक, इंटरनेशनल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. हम इस प्रोजेक्ट के अंदर हर एक कंट्री की मदद करते हैं, कोई भी क्यों ना हो, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, कौन सी मदद करते हैं उनको, आईटेक. ठीक है, हम क्या करते हैं, बाकी कंट्रीज की डिप्लोमेट्स है, पुलिस ऑफिसर्स है, स्कूल टीचर्स है, कॉलेज प्रोफेसर्स है, उनको टीचिंग देते हैं इस प्रोग्राम के अंडर, क्या नाम है, आईटेक. सो वी ऑल्सो प्रोवाइड हेल्प टू भूटान अंदर आईटेक. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, बुद्धिज्म भी खेलते हैं हम लोग, वो भी बुद्धिस्ट, हम भी बुद्धिस्ट, आप पधारो हमारे देश. ठीक है, फिर सबसे बड़ी बात, हमारे पास वी ऑलवेज हैव 2000 स्ट्रॉन्ग इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम इन भूटान. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इंडियन सोल्जर्स आर ऑलवेज स्टेशन इन भूटान की आर्मी को ट्रेन करने के लिए. ठीक है, नाम क्या है, इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम. भूटान में भी रुपए चलता है, हमारे यहाँ पे भी रुपए चलता है, हमने उनको रुपए बेचा है, तू डाल अंदर. ठीक है, रुपए, वी हैव फुल ऑपरेशनल रुपए सिस्टम विद भूटान. भूटान बिकेम द सेकंड कंट्री टू इंस्टॉल भीम. पता है ना भीम, यूपीआई. कोविड असिस्टेंस भी देते हैं हम उनको, देते हैं कि नहीं देते हैं? वी आर पार्टनर विद भूटान इन 3 मेजर ग्रुप्स. कौन से में पढ़ चुके हम? भूटान हमारे साथ कौन से ग्रुप में बैठता है? सार्क में मेंबर है, बिम्स्टेक में मेंबर है, पढ़ चुके हैं सारी की सारी चीज. NBBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, 4 कंट्री का ग्रुप BBIN. चलो मुझे एक बात बता ही दो, थोड़ा सोचो, भूटान की बॉर्डर इंडिया के कौन से स्टेट्स के साथ होगी? वेस्ट बंगाल, फिर आसाम, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश. वेरी गुड, 4 ही है. वेरी गुड जॉब. अगर वेस्ट ईस्ट में देखो अरुणाचल, उसके नीचे आसाम, उसके बाजू में वेस्ट बंगाल, इसके एग्जैक्ट बाजू में वेस्ट में सिक्किम. ठीक है, इधर ड्यूटी बजाने वाली जो फोर्स होती है उसका नाम क्या है? सशस्त्र सीमा बल. ठीक है, जैसे BSF है, वो कहाँ पे पार्टी करते हैं? बांग्लादेश की बॉर्डर पे और पाकिस्तान की बॉर्डर पे. ठीक है, ITBP है, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, कहाँ पे बैठते हैं? चाइना तिब्बत की बॉर्डर पे. ठीक है, जहाँ भी हमारी तिब्बत के साथ एज इन चाइना के साथ बॉर्डर है. नेपाल एंड भूटान आर अंडर सशस्त्र सीमा बल, SSB. ठीक है, इट इज अ लैंडलॉक कंट्री. ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है. हाँ, ये लिखो,
मानस रिवर. Why? Because it is like a boundary which separates India and Bhutan. और मानस नेशनल पार्क है आसाम में, ये भी बता दूं आपके नॉलेज के लिए, ठीक है. ये भूटान नेपाल वालों को बेचारे है ना मुफ्त में पिस जाते हैं, मेरे को कभी कभी तो लगता है. खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा, ऐसा है उनका सिचुएशन है. ऊपर नेपाल, ऊपर चाइना बैंड बजाता है, नीचे इंडिया कबड्डी खेलता है. यू नो विच आर लैंडलॉक्ड स्मॉल कंट्रीज, नेपाल एंड भूटान. ठीक है. भूटान का कैपिटल याद रखना थिम्पू. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट लिखो भाई. नेशनल अवार्ड विनर्स खुद पढ़ लोगे तो लिख लो ना. पता है ना नेशनल अवार्ड कौन जीता कौन नहीं जीता? पता है कि नहीं पता है? कौन जीता नेशनल अवार्ड, कौन जीता इस बार मेल में? आप लोग करते क्या हो ना, ये मेरे को जानना है. ऐसा नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट ये है दैट हाउ यू पास योर डे. ऐसा मतलब कुछ शेड्यूल रहता होगा. मिस्टर ग्लोबल कौन जीता है? हाँ, मिस्टर ग्लोबल कौन जीता है? कौन जीता है? ग्लोबल अभी ग्लोबल इंडिया इंडिया से है. रुक जाओ, नाम है. ये भी नहीं पता. कुछ क्रिश्चियन है, रिलीजन है. वाह वाह वाह, कहाँ देख रहे हो? हैदराबाद से भी वो भी पता है. बहुत बहुत करप्शन हो गया है माइंड में लोगों का. ठीक, चलो लिखो. दादा साहेब फाड़के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? वहीदा रहमान. तो जोरदार एक्ट्रेस है, घर पे जाके गाइड पिक्चर देखना है. ठीक है. देवानंद और वहीदा रहमान, मजा आएगा. बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा. ठीक है. कि भाई ऐसे पिक्चर पता नहीं लोगों को पसंद कैसे आते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं. अभी रिजल्ट बिजनेस होता है तो फिर कुछ कह नहीं सकते. ठीक है. हाँ, नहीं मैं एनिमल देखने ही ना जाऊँ ना, मैं तो एकदम नॉर्मल इंसान हूँ, एनिमल क्यों देखूँ? हाँ, मैं सिर्फ मच्छर मार सकता हूँ जो मारता हूँ, और किसी को कुछ नहीं कर सकता. मैं एनिमल क्यों देखूँ? और पापा पप्पा पप्पा करता रहता है, क्या है भाई? आई लव रणबीर कपूर, आई लव दैट मैन, बट ये क्या बनाया भाई यार? तू झूठी में मक्कार में जैसा है, तू मेरे को वैसा पसंद है, ये क्या है? लेकिन चलो अगेन आई वुड से पैसा कमा लिया, मतलब नंबर्स बोलते हैं, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, पिक्चर हिट है. ठीक है. लेकिन ये तो बात है. बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी, कृति सेन और मिमी. पिक्चर के नाम में ही गड़बड़ है. एनिमल, एनिमल क्या है भाई? ठीक है. उससे अच्छा सैम बहादुर देखो, यू विल गेट टू नो अबाउट वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक पर्सनालिटीज. मैं आज से नहीं, मैं बचपन से उनका फैन था. मेरे दोस्त लोग भी मान गए मुझे, बिकॉज मैं ऐसे लोगों की बातें थोड़ी ज़्यादा करता हूँ. ठीक है. वो आई वॉज टॉकिंग विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स पेरेंट्स, तो बोले बेटा इज द ओनली फील्ड मार्शल. आई वॉज अंकल नो, आपका हिस्ट्री में थोड़ा गड़बड़ी है. देर आर टू. वन इज सैम मानेकशॉ, द अदर इज के.एस. पॉन्डेरिया. ही वॉज द फर्स्ट ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंडियन फेलो. And Sam Manekshaw was field marshal only for 3 days. अरे उसके फील्ड retirement के 3 दिन पहले उसको field marshal बनाया. Yes, I tell you this one thing. I was in a I was sitting with my friends' parents. तो उनको मैंने उस दिन पूरा ज्ञान दे दिया. हाँ, the field marshal never retires. That's the main thing about being a field marshal. आपका कभी रिटायरमेंट नहीं होता. ठीक है. You are always on the roll as an employee in the Indian Army. ठीक है. So I don't expect much वैसे भी. So he was not even. So आप अगर एम्प्लॉय हो, यू विल बी पेड सैलरी. जनरल रिटायर्स, फील्ड मार्शल नेवर रिटायर्स. सो इनको ये पैसा वैसा भी इतने साल नहीं दिया. सो ही वॉज बेड रिडन, ही वॉज वेरी इल. एट दैट टाइम प्रेसिडेंट कलाम बेग्ड
with some 2 crore rupees check because that was the due that he had all these years. So he is not interested. He's a Parsi fellow, rich fellow. It doesn't matter. लेकिन ये तो बात है. So field marshals never retire. India has 2 field marshals. Technically speaking 3. Air Force we have Air Marshal Arjun Singh. ठीक है. So he is a Air Marshal. Air Marshal is like Field Marshal in Air Force. ठीक है. लेकिन तो ऐसे पिक्चर देखने चाहिए. बात तो वो है. लेकिन बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी. ठीक है. और फिर बस भाई इतना ही काफी है. हाँ बेस्ट पॉपुलर फिल्म लिख लो RRR. ठीक है. हाँ एक और बात लिख लेना विद इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन वाला दैट इंडियाज फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टुक प्लेस ऑन 25th October 1951. 1926 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे. लेकिन इलेक्शन कब हुए थे फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 25th October. Vaishali Ramesh Babu, chess player Vaishali Ramesh Babu became the third Indian woman to attain the title of ग्रैंड मास्टर. ग्रैंड मास्टर कब किसको मिलता है? कौन सी फील्ड में मिलता है? हे भगवान. चेस में मिलता है. चेस में. ठीक है. ग्रैंड मास्टर. हाँ लिखो. कोई भी उम्र में बन सकते हो आप चेस मास्टर. अच्छा रेटिंग. मेरे को वेटिंग सुनाई दे रहा था कब का. सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है अभी आज के दिन. सुबह मेरा ऐसा होता है. ठीक है. आगे. और पता है किसकी बहन है? प्रज्ञनंदा बाबू. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? He became one of the youngest grandmaster in history in 2018 at the age of 12. उसका भाई ये है प्रज्ञनंदा. वो तो 12 साल की उम्र में ही क्या बन गया था? ग्रैंड मास्टर. ठीक है. और ये फर्स्ट ऐसे है भाई बहन जो क्या है ग्रैंड मास्टर. है कि नहीं आप खतरनाक? कौन चेस खेलता है यहाँ पे? हाथ ऊंचा करो जरा. नहीं मतलब कोई चेस नहीं खेलता. वेरी गुड. स्पोर्ट्स खेलते हो कोई? ऐसा नहीं कि 2-3 दिन में एक बार ऐसे खेलने चाहिए. प्रोफेशनली खेलते हो कि नहीं ये सैटरडे जाके खेलना है मतलब कैसे खेलना? वेरी गुड. वेरी गुड. ऐसा कुछ रखना. बास्केटबॉल. गुड. नहीं हाँ तो कैम नहीं. अरे तो मेहनत वाली का एक्टिविटी है. आई विल ब्रॉडन अ लिटिल बिट. लेकिन मतलब प्रोफेशनल डांसर टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स. मतलब भूखा निकल जाता है. मैंने मेरी बहन को हाँ बहुत ठीक है मैंने देखा है मेरी बहन को करते हुए. मतलब बैंड बच जाता है. वो चैलेंजिंग वो करते हैं ना आरंगेत्रम बारंगेत्रम वो वाला. हाँ वेरी गुड. कॉन्ग्रेचुलेशन. ठीक है. हाँ 5-6 घंटे. अपने को तो बहुत मजा नहीं आया. मैं बहुत छोटा था तब हो गया इसके लिए. थैंक गॉड.
लेकिन चलता है। लिखो नेक्स्ट, द यंगेस्ट वुमन एमएलए ऑफ मिजोरम। नाम लिखो बेरिल, BARYL। નામ આખું કહું છું, થોડું વિચિત્ર છે, બોલતા નહીં ફાવે, કોઈની ફિલિંગ્સ ઓફેન્ડ થઈ જશે. બેરિલ વાનાસાંગી, વાનાઈસાંગી, VANNAISANGI. She recently won in Mizoram Assembly election from the Aizawl South 3rd constituency. वो AMC के कॉरपोरेटर भी थे. AMC मतलब अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं, आइजवाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में शी वॉज अ कॉरपोरेटर. और देखो इनका कैरियर ग्राफ मेरे को बहुत पसंद है. शी बिकम अ TV एंकर, शी वॉज अ रेडियो जॉकी, एंड देन फाइनली एट द एज ऑफ 32 शी इज द यंगेस्ट MLA along with former Indian footballer, along with former Indian footballer Gigi, JEJE. So એમને આપણા નામ એવા લાગે કે આવા કેવા બધા નામ છે આના. જીજી લાલ પેખલુઆ of the ZPM. I have a very dear friend. उसका I know her since 4 years. She is from Nagaland. उसका नाम आज भी मेरे को नहीं आता, तो मैं उसका कुछ 10-12 वर्ड्स का नाम है, तो उसका का जो बीच का 3 जो मेरे को इजीली याद रहता है, दुआ, तो मैं उसको इतना ही बोलता हूँ दुआ. आगे पीछे का अभी तक मेरे को खाता नहीं है, लेकिन काम चलता है. ठीक है, ऐसा है थोड़ा नाम, उनको भी ऐसा अपना अघरा लगता है, लेकिन चला लेते वो लोग. ठीक है, महापरिनिर्वाण दिवस. ए फोटोग्राफी फोन મૂકો. वो नाम नहीं रहा, बेरिल क्या था? मैं आखी स्पेलिंग की थी ना, तो सुना आपको. लिखो महापरिनिर्वाण दिवस. परिनिर्वाण दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? लिखो, वो आपका होमवर्क है. ठीक है, this day is important. Why? Because it is celebrated as Mahan Parinirvan Divas because B.R. Ambedkar passed away on this day. 14 अप्रैल को उनके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी इतना ही लिखो. ठीक है, અલા હું ઘડિયાળ જોઈને નહીં કામ કરતો. આપણે કામ કરવામાં મજા આવી જોઈએ, समझिया. उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम लिखो, वेटिंग फॉर अ वीजा. नाउ दिस बुक इज यूज्ड राइट नाउ इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी. अंकल भी कोलंबिया में ही पढ़े थे. ठीक है, he was the first Indian to pursue economics doctorate degree abroad. And he is also the first double doctorate holder in economics in South Asia. And he is also the first double doctorate holder in economics from South Asia. नेक्स्ट, मतलब नया न्यूज़. 14 अप्रैल को एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, आधा घंटा. अभी इसके लिए नेक्स्ट लिखो. भाई, इंडिया में सबसे पहले वुमन सुप्रीम कोर्ट जज कौन? क्लास में पढ़ाया हुआ है.
बोलो, ये भी बता देता हूँ। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट वुमन जज कौन है भाई? रिसेंटली शी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 96 इन कोलाम, केरला। फातिमा बीवी। गूगल नहीं करवा, गूगल नहीं करवा, ये खबर पड़ी જ જાય। ઇન્સ્ટન્ટ આન્સર આવે એટલે સ્ટુડન્ટને આવડે છે, 5 મિનિટ રહીને આન્સર આવે એટલે ગૂગલ આન્સર। જસ્ટિસ ફાતિમા બીવી, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, ओपन एआई क्या है, दैट यू नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट थिंग। ओपन एआई। सैम एल्टमैन कौन है? क्वेश्चन मार्क। એ તો મેં અત્યારે ઓલરેડી કહી દીધું અને લકીલી તમને યાદ રહ્યું એ વસ્તુ સાંભળીને હું ઇમ્પ્રેસ છું। બાકી આ તો બરાબર છે ભાઈ। જો આ જ વસ્તુ છે, યાદ રાખજો। फ्रॉम दिस इंसिडेंट यू कैन लर्न वन थिंग, लाइक इफ यू आर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन अपनी मनमानी कर सकते हो। हिज होल स्टाफ सेड वी विल रिजाइन, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। वो मेरे को निकालना निकाल लो, इन सबको लेके ये सब लोग आ रहे हैं मेरे साथ, मैं क्या करूँ? दैट थिंग इज गुड कि आपने एक इंसान को बोला कि तू कल से मत आना, तो दैट इज हिज, आई वुड से हिज स्किल्स, दैट इवन हिज इमीडिएट टीम, कोई दूसरा होगा ही वुड हैव थॉट दैट यू नो आई विल टेक दिस पोजीशन, बट नो, ही रेदर इंस्पायर्ड लॉयल्टी विद इन हिज मैन, एंड डजंट मैन एज इन महिलाएं, वो मत हो जाना, एवरीबडी, ठीक है, सब कुछ। चल आगे लिखो। सैम एल्टमैन का लिख लिया आपने? अरे घरे जઈને શું કરવું છે તમારું? मैं भी सवारे कશું નથી કરવું, મારે તો દવાઈ લેવાની છે, બોલ। आई एम टेकिंग माय मेडिसिन लेट। चलो આપણે એક વર્ડ ઓફ ધ ડે कर દઈએ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वर्ड ऑफ द ईयर, पहली बार मैंने भी कहा, रिस, RIZ, रिस, बराबर? हाँ। It means charming and being nice and sophisticated. It has different meanings, but basically it means charming, ठीक है? लिख लो। Oxford University Press. So it's like a slang term or new term for charisma. बराबर? करिश्मा नहीं, लोलो नहीं, करिश्मा, बराबर? देखो नेक्स्ट टाइम अगर हर लोगों ने यहाँ पे 2-2 न्यूज़ नहीं दी है ना, तो 2-2 मिनट बढ़ा दूंगा लेक्चर की, ठीक है? तो पढ़ के आना है, ऐसे बैठा मत करो, ठीक है? और ये सब किसको उड़ा दिया, किसने ये कर लिया, वो सब नहीं है, कुछ अपने एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ चाहिए मेरे को। चलो, थैंक यू, सी यू। और पुराने जो क्वेश्चन पेपर आए ना आज का भी, कोई भी एग्जाम को भी हो, तो उसे देख के थोड़ा एनालाइज करो कि हमको कितना आता है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? કેમ ખાવાના જ જવું હવે તારે? હા ચાલ ચાલ જોડે જ છે। શેના રિઝલ્ટ? Recording stopped.